Hi guys, welcome to my YouTube channel Prepare Karo. So today we are going to start a very interesting topic of quant and the topic is time, speed and distance. Yes. So आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे, राइट? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की मैं बात करूं तो मोस्टली जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम्स हैं हमारे पास, कैट, ओमेट्स, बैंक पीओ, एसएससी, ये जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हर एक एग्जाम में एवरी ईयर इससे क्वेश्चन पूछे जाता है. ओके गाइज, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीएसडी, राइट? ओके. So there are three variables in this you can say chapter. One is time, second is speed, and our third variable is distance. TSD, time, speed and distance. Okay, so time T, I am saying speed S and distance D. What's the relation between these among these three variables? So first relation is distance is equal to speed into time. Second relation is speed is equal to distance upon time. And the third relation is time is equal to distance upon speed. Yes, these three formulae are used in solving questions of TSD. Okay. Apart from these three formula, we have two very common units of speed. वो units जिसमें हम speed को measure करते हैं. One is kilometer per hour and another unit is meter per second. Okay. So we have units of speed. Units of speed. क्या क्या यूनिट्स हमारे पास स्पीड की? जैसे वी हैव किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड. किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड. कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में या फिर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में? सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर अपॉन 1 hour is equal to 1 kilometer is equivalent to 1000 meters and 1 hour is equivalent to 3600 seconds. 100 seconds. So अगर आप इसको 200 से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को तो यह आ जाता है 5/18 टाइम्स मीटर पर सेकेंड. What does this mean? If we have a speed of 1 kilometer per hour, that will be equivalent to speed of 5/18 meter per second. So you can note it down. First point, x kilometer per hour is equal to 5/18 x meter per second. Also y meter per second is equal to 18/5y kilometer per hour. Okay, these are the simple things to remember. Okay guys, so the three formula: d is equal to s into t, s is equal to d upon t, t is equal to d upon s. Apart from this, we have two units of speed: kilometer per hour and meter per second. Okay, now there are few types of problems in this chapter. Some of the problems are based upon the concept of ratio, right? Ratio, proportion and variation, I would say. Some questions are based on the concept of average speed. Some concepts are based on boat and stream. Questions based on trains. Questions based on circular tracks, like this. So there are various sections in this entire chapter. फर्स्ट सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन टूल्स पर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट?
So RPV tools, I am writing RPV is ratio, proportion and variation. RPV tool, ठीक है। ये पूरा पूरा चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आप चाहे तो इसकी प्लेलिस्ट पर जाकर रेफर कर सकते हैं एक बार। हर एक इसका जो वीडियोस इसमें अपलोड किए हैं वो सारा देख सकते हैं। आरपीवी टूल। सो फर्स्ट टूल इज व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। व्हेन डिस्टेंस is constant. Okay, ठीक है। सपोज आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। पॉइंट ए से पॉइंट बी आपको जाना है। अगर आप ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो आपको टाइम कम लगेगा, और अगर आप कम स्पीड से जाएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप अपनी स्पीड को डबल कर लेंगे तो आपको टाइम हाफ लगेगा, और अगर आप अपनी स्पीड को हाफ कर लेंगे तो आपको टाइम डबल लगेगा। सो यू कैन से व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, स्पीड is inversely proportional to time. Speed is inversely proportional to time, ठीक है। Speed is inversely proportional to time, or you can say speed into time is equal to constant. Distance is speed into time, and distance is constant, so indirectly speed into time is constant. Okay, that means if we have speed s1 and corresponding time is t1, and we have speed s2 and corresponding time is t2, then this s1 into t1 should be equal to s2 into t2. Or you can say ratio of speeds will be equal to inverse of ratio of times, so t2 by t1. s1 by s2 is t2 by t1, राइट। अगर टाइम हमारा 3:4 में है तो स्पीड 4:3 में होगी। ऑलराइट गाइस, इफ रेशियो ऑफ टाइम इज नोन टू अस, वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड। रेशियो ऑफ स्पीड विल बी इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ टाइम, ओके, whenever distance is constant. Second thing, if speed increased by, if speed is increased by a upon b, then time will reduce by a upon a plus b. ओके, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी परसेंटेजेस में, ठीक है। इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय a अपॉन b, देन टाइम विल रिड्यूस बाय a अपॉन a प्लस b। कैसे? लेट्स से यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम a टू b, जो यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है आपको a टू b, दिस वन। अगर आपने अपनी स्पीड को 25% से इंक्रीज किया, ठीक है, इफ स्पीड is increased by 25%, अगर आपने स्पीड को 25% से इंक्रीज किया, दैट मीन्स स्पीड विल बिकम 5/4 टाइम्स। स्पीड विल बिकम 5/4 टाइम्स, सो टाइम विल बिकम 4/5 टाइम्स। ऑल राइट, टाइम विल बिकम 4/5 टाइम्स। अगर कोई चीज 4/5 टाइम्स हुई है, दैट मीन्स वो रिड्यूस हुई है 1/5 से। इट इंप्लाइज 1/5 रिडक्शन, 1/5 डिक्रीज। ऑल राइट, एंड 1/5 डिक्रीज इज सिंपली 20% डिक्रीज। सो अगर स्पीड 25% से इंक्रीज हुई है तो टाइम हमारा 20% से डिक्रीज होगा, ठीक है। 4/5 टाइम्स हो गया, मतलब 1/5 वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। इसको ऐसा भी कह सकते थे, 25% इंक्रीज इन स्पीड करेस्पॉन्ड्स टू 1/4 इंक्रीज इन स्पीड, एंड a अपॉन b का इंक्रीज है तो a अपॉन a प्लस b का डिक्रीज होगा टाइम में, मीन्स 1/1 + 4 का डिक्रीज होगा टाइम में।
राइट, विच इज इक्वल टू 1/5 का डिक्रीज इन टाइम एंड 1/5 का डिक्रीज इज 20% डिक्रीज। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं। सो ऑल दिस इज ट्रू व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, सिंपल फंडा, राइट। नाउ let's discuss one question based upon this concept of when distance is constant. So question is, Ram travels from his home to office at a speed of 10 kilometer per hour and reaches on time and reaches exactly on time and reaches exactly on time, right? If he increases his speed to 12 kilometer per hour, he reaches 10 minutes early. He reaches 10 minutes early, right? Find the distance between his home and office. Find the distance between his home and office. ये क्वेश्चन है। नाउ इस क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट अप्रोच आई एम गोइंग टू डिस्कस, दिस इज मेथड 1, राइट। सो मेथड 1 में मान लेते हम लोग डिस्टेंस d है, राइट। डिस्टेंस इज d, तो कैन आई से d अपॉन 10 is time taken in the first case t1, right, and time taken in the second case t2 is d upon 12। इसने कहा जो t2 टाइम है is 10 minutes less than t1 टाइम, राइट। 10 minutes वो अर्ली पहुंच जाता है, दैट मीन्स उसने 10 minutes सेव किए हैं, सो द टाइम डिफरेंस इज 10 minutes। तो आप कह सकते हो t1 माइनस t2 इज 10 मिनट्स में है, तो 10/60 आवर में लिख लें इसको, 60 आवर। यहां से आप कह सकते हैं d/10 माइनस d/12 इज इक्वल टू 10/60 इज 1/6 आवर। सो दिस इज 1/6, राइट। 16 का एलसीएम आ जाएगा, 6d माइनस 5d is equal to 1/6. So finally our d is 10 kilometers. d 10 kilometer. So this is method 1, जहां पर आपने डिस्टेंस को d एज्यूम कर लिया है और वहां से हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई है, 10 किलोमीटर, आवर आंसर। मेथड 1 क्लियर, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट्स look at method number 2 for the same question. ओके, मेथड नंबर 2, इसमें हम आरपीवी टूल का यूज कर लें, राइट। सो देर आर 2 सिनेरियोज, एक केस में स्पीड 10 है, दूसरे केस में स्पीड 12, राइट। सो अगर मैं रेशियो ऑफ स्पीड की बात करूं, रेशियो ऑफ स्पीड, तो ये आ जाएगा 10:12, 10:12 इज 5:6। रेशियो ऑफ स्पीड is 10:12 is 5:6. It implies ratio of time will be what, 6:5, क्योंकि ratio of time and ratio of speed are inverse of each other,
ठीक है, 5:6 इज द रेशियो ऑफ स्पीड, 6:5 इज द रेशियो ऑफ टाइम। ठीक है, नाउ जो टाइम का डिफरेंस है इज 10 मिनट्स। कैन आई से 6 रेशियो पॉइंट्स का टाइम माइनस 5 रेशियो पॉइंट्स का टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स। सो यहां से 1 रेशियो पॉइंट जो टाइम होगा वो कितना आ जाएगा, 10 मिनट्स। अगर 1 रेशियो पॉइंट का टाइम 10 मिनट्स है तो कैन आई से 6 रेशियो पॉइंट का टाइम आ जाएगा 60 मिनट्स। 6 रेशियो पॉइंट का जो टाइम है वो आ जाएगा 60 मिनट्स, राइट। दिस 6 रेशियो पॉइंट इज द टाइम taken when the speed is 10 km per hour and 5 ratio point is the time taken when the speed is 12 km per hour. So distance will be, distance is equal to 10 की speed और 60 मिनट्स टाइम मीन्स 60 मिनट बाई 60 मिनट्स, तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 इंटू 60/60 इज 10 किलोमीटर ओनली। या तो ऐसे फाइंड कर ले या फिर 12 की जो स्पीड थी उसमें टाइम कितना लगा, 5 रेशियो पॉइंट, एंड 5 रेशियो पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 50 मिनट्स। सो 50 डिवाइड बाई 60 आवर में कन्वर्ट करने के लिए, और ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 किलोमीटर। ओके, सो दिस इज द टूल, राइट, जिसके हम लोग बात कर रहे थे, आरपीवी टूल। देयर इज वन more method to answer this question. Let me discuss that method also now. Third method, okay, method number 3. In method number 3 we will use the concept of increase in speed and decrease in time, right? So अगर मैं बात करूँ स्पीड की, स्पीड हमारी 10 से 12 हुई है, 10 से 12, स्पीड में इंक्रीमेंट कितना है, सो स्पीड हमारी 12 हो गई 10 से, दैट मीन्स 2 का इंक्रीमेंट है ओवर 10, एंड 2 over 10 इज 1/5 इंक्रीज। अगर स्पीड में 1/5 का इंक्रीमेंट हुआ है तो टाइम में कितना डिक्रीमेंट होगा, 1/1 + 5 का डिक्रीज, विच इज 1/6 का डिक्रीज। टाइम में डिक्रीज हुआ कितना है, 10 मिनट्स। अच्छा, जो 1/6 का डिक्रीज है वो इनिशियल टाइम में हुआ होगा, तो कैन आई से 1/6 ऑफ इनिशियल टाइम, 1/6 ऑफ इनिशियल टाइम इज नथिंग बट 10 मिनट्स। 1/6 of initial time is nothing but 10 minutes. That means initial time t is 60 minutes, or 60 minutes you can say 1 hour. ये जो इनिशियल टाइम है वो कब लगा, जब स्पीड 10 की थी, इनिशियल स्पीड थी, तो कैन आई से डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड 10 इंटू इनिशियल टाइम 1 आवर इज अगेन 10 किलोमीटर। ये समझना ज़्यादा क्रूशियल है यहाँ पर, ये जो डिक्रीज हुआ है वो इनिशियल टाइम में डिक्रीज हुआ है, तो इनिशियल टाइम में डिक्रीज 1/6 का है, एंड दैट डिक्रीज इज 10 मिनट्स। तो 1/6 ऑफ इनिशियल टाइम इज 10 मिनट्स, दैट मीन्स इनिशियल टाइम इज 1 आवर, एंड सो द डिस्टेंस इज इनिशियल स्पीड 10 इंटू 1 आवर टाइम, 10 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। Guys, I hope all the 3 methods are very clear to all of you, right? अगर फिर भी कोई डाउट आपको आ जाता है तो जस्ट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आई विल रीच आउट टू यू। सो गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद सम न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। थैंक यू सो मच।